Anshul continues to be with us on the show. Anshul, statements and counter statements have come in from both the sides. The Congress party and its top leaders have taken in a position that the law and order is in a bad shape and the BJP government is not taking adequate action. On the other side, the Chief Minister and the Home Minister have come out and said, we are doing our best. Take us through the sort of political narrative we have seen coming out on this entire incident. So yes, as soon as the event came to light, the first person to react on this was Randeep Surjewala, where he raised questions on the capability of Manohar Lal Khattar to handle the law and order situation in Haryana. And just a few minutes ago, Delhi CM Arvind Kejriwal has also put out a tweet. Now remember, Kejriwal is also trying to get into the politics of Haryana, and he thinks that he could be a big, he could have a big role to play in the upcoming Haryana election since Congress is on the downfall over there. So yes, CM Kejriwal had put out a tweet just a few minutes ago, and he has said that this is a very, very sad incident that has happened, and he has said that he stands with the family members of the slain police officer. And as well, he has also raised questions on the Haryana government yet again, where he has said that the Aam Aadmi Party and the workers of the Aam Aadmi Party had already been raising questions on the land mafia that has been so vigilant in Haryana over the past few weeks. Now remember, the same allegations were raised against Arvind Kejriwal and his government in Punjab, where the land mafia was so very active, and especially during the elections as well. It was one of the biggest talking points in the assembly elections in Punjab as well. Now, since the land mafia has gone so very active in Haryana, so yes, questions are being raised on the Haryana government as to were the administrators and were the local police hand in glove with such mafia, because this is not something that has happened over the last 1 or 2 years, but the land mafia has been active in this area of Nuh for past many years now. So yes, the Haryana government seems to be in a dock right now, and it is up to them as to how quickly could they investigate the case and not only arrest the driver, but also the mafia who are actually involved. Yes, in this at whole whose case. behest was the driver or the truck really operating, and how did this entire incident take place? Stay with us, Anshul. I'll keep coming back to you. Krishna from Delhi is another caller. Krishna, thank you so much for calling us. What are your thoughts? Yeah, hi ma'am. This is completely disturbing, and after hearing this news, it's very bad. I mean, they have also family, right? I mean, how it affect their family. So why can't the state government take best practices from other states and or take the help of central force to eliminate these kind of mafia? It's high time they should use the bulldozer. All right. A lot of those thoughts have been coming from various quarters, keeping in mind that this is an incident which has sent shockwaves across the entire state. And once again, in the focus right now is the sand mining mafia, which has been a headache for respective administrations in the state. Some political reactions that we are playing out. किस तरह से देखते हैं आप, क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर? देखिए, हम पीछे जब हमारे विधायकों को टेलीफोन आए, धमकियां मिली, उसमें सारी मतलब बीजेपी के भी विधायक था और कांग्रेस के भी थे। उसे हम राज्यपाल जी को मिले थे। सवाल इस बात का नहीं है कि विधायकों को धमकी मिली, आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और जब आज ना विधायक ना पुलिस अपने आप में सुरक्षित हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? तो ये बड़ा ऐसा विषय है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है कोई। जहाँ कानून है चुस्त दुरुस्त जब तक नहीं होगी, उसका बड़ा भारी गहरा प्रभाव प्रदेश के विकास पे भी पड़ता है। आप कैसे इस घटना को देखते हैं? आपकी सरकार है वहाँ पर? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी घटना है, और ये घटना ऐसी नहीं है कि जिसे किसी भी प्रकार से हल्के में कोई ले सके। एक सीधी चुनौती है पूरी पुलिस व्यवस्था को, पूरे प्रशासन को, पूरी सरकार को। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, और मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द करेगी, और कार्रवाई भी ऐसी हो जिससे एक संदेश पूरे प्रदेश में जाए, और ख़ास तौर पर ये जो भू माफिया है या माइनिंग माफिया है, इनको ये संदेश जाना। Joining us on the broadcast is my colleague Deepak Bish from News 18 India. He is tracking all the developments on the ground. Deepak, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय पुलिस की कार्यवाही प्राइमा फेसी क्या-क्या तथ्य हैं जो सामने आए हैं? ग्राउंड से आप क्या खबर है जो हमें बता सकते हैं?
देखिए मैं जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि अभी तक फिलहाल 4 घंटे बीत चुके हैं, डीएसपी के कातिलों तक पुलिस नहीं पहुंची है। ये साफ तौर पर ये अब का अपडेट है। और जिस तरह से जो अवैध खनन चल रहा था वो इन पहाड़ियों पर चल रहा था। मैं दिखाना चाहूंगा ये तस्वीरें। ये अवैध पहाड़ियां हैं, यहाँ पर अवैध रूप से खनन इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी की क्षय होती होगी, किसी न किसी का सपोर्ट मिलता होगा। और यही वजह थी कि इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर खनन कार्य जो है अवैध रूप से यहाँ पर खनन माफिया कर रहे थे। और यही जानकारी आज डीएसपी को मिली थी, जिसके बाद 12:15 बजे दिन के वो यहाँ पर पहुंचे थे। और उन्होंने जो गाड़ी यहाँ पर से जो कंक्रीट जो पत्थर भरा जाता है डंपर में, उसको यहाँ पर भरा। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से खनन माफिया वापस निकलने लगे तो डीएसपी को इनपुट मिला था। उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इसी जगह पर अपनी गाड़ी यहाँ पर लगाई। और सरकारी गाड़ी पर वो जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पर गाड़ी लगाकर सिर्फ यही रोकने की कोशिश की। लेकिन जो हमलावर थे उनका अंदेशा डीएसपी को भी नहीं पता था कि वो उनके ऊपर डंपर को चढ़ा देंगे। और यहाँ पर देखा गया ये जो रूट है, इस पूरे रूट को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रूट, इसी रूट पर उन्होंने जो डंपर था वो वहां से आ रहा था। डंपर इस ऊंचाई से आ रहा था क्योंकि भरा हुआ डंपर था, ऊंचाई से आ रहा था। और उसके बाद यहाँ पर डीएसपी ने अपनी गाड़ी को लगाया था ताकि सरकारी गाड़ी को देखकर जो हमलावर हैं वो रुक जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। आप ये देखिए, ये पत्थरों को देख सकते हैं। ये डंपर में इस तरह के पत्थरों को रखा गया था, भरा हुआ था। और उसके बाद इस जगह पर, ठीक इसी जगह पर वो स्पॉट है, ये ब्लड के यहाँ पर निशान देख रहे हैं आप। इसी जगह पर उन्हें हिट किया गया था। और यहाँ पर हिट करने के बाद डंपर चालक ने डंपर पीछे किया और उसके बाद यहाँ से 9-2-11 हो गया, यानी फरार हो गया। ये पूरा जो मलबा है इस डंपर के अंदर जो रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। उसने डंपर को खाली किया, मतलब वारदात को अंजाम देने के बाद डंपर जो भरा हुआ था उस डंपर को उसने खाली किया। और ये सारे पत्थर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से वो फरार हो गया। दूर वो कहाँ गया इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। डीएसपी के साथ जो पुलिसकर्मी थे वो कहाँ गए ये देखना जरूरी है, क्योंकि उनकी संख्या नहीं पता चल पा रही है। क्योंकि उनके साथ कम से कम एक चालक और एक कांस्टेबल तो होना चाहिए। अगर वो यहाँ पर रेड पाए हैं तो पुलिस पार्टी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डीएसपी के ऊपर हमला करने वाले कौन थे? क्या चालक अकेला आया था? डंपर चालक के साथ क्या उसका मालिक भी था? ये डंपर किसका है? कौन उस डंपर के अंदर कुछ लोग और बैठे होंगे? क्या साजिशन ये सारी जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया? ये सब पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली कि जितने डंपर इस इलाके में चल रहे हैं उनको यहाँ पर उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कितने डंपर चालक हैं, कितने ट्रक वगैरह चलाते हैं, इतने ड्राइवरों की सूची यहाँ पर बनाई गई है। और ये सब इसलिए कवायद की जा रही है ताकि उसको पकड़ा जा सके कि कौन हमलावर थे, किन लोगों ने पकड़ा था, ताकि एक लीड अगर पुलिस को मिलती है तो उस पर काम किया जा सके। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी दीपक, पूरे दिन में आज हमने देखा राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का एक पूरा दौर चला। रूलिंग पार्टी का कुछ कहना है, विरोधी दलों का कुछ कहना है। सैंड माइनिंग एक बहुत पुरानी समस्या रही है हरियाणा में, बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन सैंड माइनिंग की प्रॉब्लम को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। स्थानीय लोगों का इस तरह की घटनाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो बता सकते हैं कि क्यों हुआ, वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, क्योंकि वारदात के बाद भी स्थानीय लोग ही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले पहुंचते हैं। वहां के लोकल गांव वालों से, स्थानीय लोगों से क्या आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हुई है? देखिए, स्थानीय लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहाना बनाया कि वो वारदात के वक्त नहीं थे, क्योंकि साफ तौर पर ये एक तो डीएसपी का यहाँ पर कत्ल हुआ है, उसके बाद दूसरा जो खनन माफिया है उनसे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते। जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन लोगों से हमने पूछताछ की थी, कोशिश की थी कुछ बता सके लोग कि कब घटनाक्रम था, कैसे यहाँ पर खनन माफिया अवैध रूप से यहाँ पर खनन के लिए यहाँ पर पहुंच जाते। तो कोई भी जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं था। इतना बड़ा खौफ यहाँ पर खनन माफियाओं को देखा जा सकता है। उन खनन माफियाओं को खौफ तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने सरेराम एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया तो उनका खौफ यहाँ पर देखा जा सकता है। और यही वजह थी कि गांव वाले भी यहाँ पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अवैध रूप से जो खनन यहाँ पर होता रहा है उसकी लगातार शिकायत है, वो हमेशा करते रहे हैं, लेकिन कभी भी कानूनी रूप से कहे तो कार्रवाई नहीं हो पाई। और जिसका जीता जागता सबूत यहाँ पर यह था कि डीएसपी पर हमला करना, उनकी जान ले लेना, यहाँ पर सबसे बड़ा खनन माफियाओं की दबंगई है। और इसी वजह से अब पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती है उन कातिलों तक पहुंचना जिन्होंने डंपर को डीएसपी की गाड़ी के ऊपर चढ़ाया था और डीएसपी की इसमें मौत हुई थी। अब फिलहाल पुलिस का कहना है कि आधा दर्जन से ज्यादा उन्होंने टीम बनाई है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, कई जगह पर रेड्स की जा रही हैं। लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी हमलावर फरार हैं। न ट्रक का नंबर, जो डंपर चालक को, न डंपर का नंबर अभी तक पुलिस के पास है, न डंपर चालक की जानकारी पुलिस के पास है। तो कहीं ना कहीं बड़े लूप होल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि पुलिस का जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखना यही हुआ कि कब तक इस पूरे मामले की जो प्रकरण है इसकी जांच चल रही है और कब तक आरोपी तक पुलिस पहुंच पाती है। Deepak Bisht getting us all the details from the ground. We are also getting a reaction from the ADGP Law and Order of the state. Let's listen in.
मेरे पास पुलिस वाले जो अपने डीएसपी साहब की पर्सनल टीम थी उनके साथ, जो उनका पर्सनल स्टाफ था वो उनके साथ था, सरकारी गाड़ी में थे।